एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ। કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ ફરી એકવાર જે ગૃહ છે એ સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યું અને સ્થગિત થવાના કારણ શું તો વિપક્ષે હોબાળો કર્યો। વિપક્ષ છેલ્લા કેટલાય દિવસથી એટલે કે જ્યારથી સંસદની શરૂઆત થઈ ત્યારથી વિરોધ કરી રહ્યા છે। આજે વિપક્ષે જે સંસદનું પરિસર છે ત્યાં ઊભા રહીને વિરોધ કર્યો અને એક પ્લે કાર્ડ લઈને આવ્યા હતા કે આ દિવસ ગૃહમંત્રી હાજર જ નથી રહ્યા। અમિત શાહ કેમ હાજર નથી રહ્યા, અમિત શાહ જવાબ આપે, આ બધા નારા લાગ્યા। વિપક્ષના નેતા આ વિષય પર આક્રમક છે કે ગૃહમાં ગૃહમંત્રીએ આવી અને વાત કરવી જોઈએ, ચર્ચા કરવી જોઈએ, જવાબ આપવા જોઈએ। સાથે જ પ્રધાનમંત્રી કેમ નથી આવતા એ પ્રશ્ન પણ કરવામાં આવ્યા। રાજ્યસભા અને લોકસભા બંનેમાં હોબાળા થઈ રહ્યા છે। લોકસભામાં આજે જ્યારે શરૂઆત થઈ એમ તરત જ હોબાળો થઈ ગયો। એની પહેલા જે પરિસરમાં થયું એટલે પરિસરમાં વિપક્ષના મોટાભાગના બધા જ નેતા હતા। પ્રિયંકા ગાંધીથી લઈને અખિલેશ યાદવથી લઈને બીજા બધા જ નેતાઓએ પ્રતિક્રિયા આપતા એવું કહ્યું કે ગૃહમાં ચર્ચા જ નથી થતી અને સરકાર એ સવાલોના જવાબ આપવાથી ડરે છે એટલે ગૃહમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રી નથી આવતા। મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જ્યારે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી તો એમણે પણ એવું કહ્યું કે ચર્ચા નથી થતી, જવાબો નથી આપવામાં આવતા। અમિત શાહ હવે ગૃહમાં ક્યારે આવે છે, કારણ કે બે વારે ગૃહમાં આવ્યા પણ ગૃહની અંદર નથી બેઠા અને ચર્ચાઓ નથી કરી। સાથે જ પ્રધાનમંત્રી પણ આવ્યા છે પણ એ સંસદીય દળની બેઠકમાં આવેલા છે। હવે ગૃહ આટલા દિવસથી ચાલે છે, અલગ અલગ બિલ પર ચર્ચા થવી જોઈતી હતી પણ એ બિલ પર ચર્ચાઓ નથી થઈ રહી, હોબાળો થઈ રહ્યો છે। ગૃહમંત્રી કેમ નથી આવતા, સાથે જ વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ કોણે કરાવ્યો એ સવાલ પર વિપક્ષ જે છે એ વિપક્ષ વિરોધ કરી રહી છે। એટલે પહેલા દિવસથી જ્યારથી સંસદની શરૂઆત થઈ ત્યારથી વિપક્ષનું એવું કહેવું છે કે જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ થયો જે ખૂબ ખોટું છે, એ કોના કહેવા પર થયો અને એ બધા જ વિષય પર ગૃહમંત્રી જવાબ આપવો જોઈએ। આજે રાંચીની પણ એ સ્થિતિ છે। રાંચીમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે વિધાનસભા ઘેરવા માટે પહોંચ્યા ત્યાં લાઠીચાર્જ થયો છે। હવે આ મુદ્દાઓ પર પણ વિપક્ષ હોબાળો કરે અને આગળ જતા આ મુદ્દાઓ પર પણ જવાબ માંગે એવી સંભાવનાઓ છે। આજે ગૃહની બહાર શું થયું, અંદર શું થયું, સાથે જ વિપક્ષના नेताओं शू कह रहा है ते सांभळो। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो इतना क्यों गड़बड़ कर रहे हो अमित शाह करे जैसे? देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं। सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि सदन में जो सदस्य जनता ने चुन के दी उनका आप अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जनता का अपमान कर रहे हैं और एक तरफ संविधान के तहत जो सदन चलना चाहिए उसको भी आप नकार दिए हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अमित शाह खुद आए, बयान करे, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हमारे होम मिनिस्टर को, भाई आप एक बयान दो, मैं भी एक बयान दूंगा और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये खत्म हो जाएगा ये झगड़ा। लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सदन सुललित चले, अच्छा चले, शांति से चले और उनको जो कुछ प्रश्न पूछा जाएगा वो उसका उत्तर भी दे, लेकिन वो देना नहीं चाहते, वो डर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा
क्यों डर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ गलती किए हैं और बच्चे आज और हमारे युवा छात्र पूरे देश में उनके खिलाफ उठे हैं, तो उनको कोई मॉरल राइट नहीं है और उनके पास कोई मौलिक या मॉरल राइट बचा नहीं है। किसी को सूरत दिखाने की उनकी इच्छा नहीं है। वो बार बार पेपर में तो रोज एडवर्टाइजमेंट आता उनकी सूरत। अब भाई यहाँ सूरत दिखाने में क्या है? राज्यसभा में दिखाओ, लोकसभा में दिखाओ, तो ये सूरत दिखाने को भी तैयार नहीं। तो हम यही कहेंगे कि ये जनता के समस्याओं को हल नहीं करना चाहते और खास करके जो हमारे नौजवान साथी हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनका भी जो समाधान नहीं निकालना चाहते। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं या आके स्टेटमेंट दो, अपनी बात रखो, डिबेट चलेगी और जो कुछ भी समाधान निकलेगा निकलेगा, या नहीं तो आप राजीनामा दो। अगर आप सदन में आके बोलने को भी तैयार नहीं है, इस्तीफा दीजिए। अब घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपीज, एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो यहाँ रूम में बैठ के सुनते हैं और रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और अपने लोगों को ये कहते हैं कि अगर हम उठे तो तुम सब लोग, बीजेपी के सारे लोग उठ के उनको तुम प्रोटेस्ट करो। तो ये बोलने नहीं देते। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे चेयरमैन साहब क्यों हमको आवाज उठाने नहीं देते। हमेशा वो राइट की तरफ ही देख रहे हैं। मैं बात जब करके उनको पूछता हूँ, वो बोलते हैं खाम अभी देता हूँ, तो उनके ऊपर भरोसा करके मैं बैठ जाता हूँ, वो सदन अडजर्न कर देते हैं। तो ये अच्छा नहीं। मैं और एक बार हमारे चेयरमैन साहब से भी विनती करूंगा और हमारे डिप्टी लीडर जब बिजनेस इसके लिए जाएंगे और चीफ विप भी जाएंगे, ये बात मेरे तरफ से रखना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पे मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन उन्होंने सडनली सदन अडजर्न कर देते हैं। तो ये हम को एक बहुत बड़ा मार गिर रहा है और हम कोई उनको दूसरा कुछ नहीं मांगते, यही मांगते सदन में आओ, बात रखो, डिबेट शुरू हो जाए। नहीं है तो आप लोग इस्तीफा देके घर चलो। अरे देखो, आप जानते हैं हम तो डिबेट चाहते हैं, क्यों डिबेट नहीं करना चाहते? बाकी का स्टेटमेंट आकर बहुत बार यहाँ सदन में देते हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे स्टेटमेंट? अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना, तो इसीलिए उनके पास इसका कोई रिप्लाई नहीं है और उनके वजह से सदन नहीं चल रहा है। वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। अमित शाह जी को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना ऑफर दे दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी अपोजिशन पार्टी में कुछ मतभेद है, आपस में कुछ मतभेद है, वो सुलझा ले। हम तो चर्चा के लिए, छात्र का मामले है, हम चर्चा के लिए तैयार है। चोर कहाँ मिलेंगे? चोर कहाँ मिलेंगे?
अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा देना होगा। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? चोर कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर 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 कहाँ मिलेंगे? अरे अमित शाह सदन में अमित शाह गायब है।